سب سے بڑے ڈاکو، سب سے بڑے منی لانڈرر شریف خاندان کے سپوتوں کو، شہباز شریف کو 16 ارب روپے کی کرپشن کے کیس میں عدالت نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ میرے ملک کے غریبوں کا پیسہ ہے۔ میں نے ایک ٹویٹ کی جنرل باجوہ اور اس کے ساتھ 4-5 آدمیوں کو، مجھے قانون اور پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ کیا میرے ملک کے اندر کرپشن کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ارشد شریف کا کیا جرم تھا؟ لوگوں کی اربوں ڈالر کی پراپرٹی جو پاکستان سے چوری کر کے لے کے جا رہے تھے ان کو ننگا کر رہا تھا۔ لندن میں بیٹھے والے ان ساروں نے ملک کے خلاف جو جرائم کیے ہیں ان کو ساری دنیا میں عیاں کر رہا تھا، اور عمران خان کا کیا جرم ہے، کیا قصور ہے؟ وہ صرف اس قوم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ 1500 سال پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ میرے ملک کے پاکستان کے لوگوں، میرا جرم کیا تھا؟ 12 اکتوبر کو شام کے 7 بجے میں نے اپنے گھر پہ ٹی وی کے اوپر ARY پہ خبر چل رہی تھی کہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم، سب سے بڑے ڈاکو، سب سے بڑے منی لانڈرر شریف خاندان کے سپوتوں کو، شہباز شریف کو 16 ارب روپے کی کرپشن کے کیس میں عدالت نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ میرے ملک کے غریبوں کا پیسہ ہے۔ میں نے ایک ٹویٹ کی جنرل باجوہ اور اس کے ساتھ 4-5 آدمیوں کو، مجھے قانون اور پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ کیا میرے ملک کے اندر کرپشن کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ارشد شریف کا کیا جرم تھا؟ لوگوں کی اربوں ڈالر کی پراپرٹی جو پاکستان سے چوری کر کے لے کے جا رہے تھے ان کو ننگا کر رہا تھا۔ لندن میں بیٹھے والے ان ساروں نے ملک کے خلاف جو جرائم کیے ہیں ان کو ساری دنیا میں عیاں کر رہا تھا، اور عمران خان کا کیا جرم ہے، کیا قصور ہے؟ وہ صرف اس قوم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ 1500 سال پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ میرے ملک کے پاکستان کے لوگوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہم سپریم کورٹ کے سامنے، پاکستان پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کے لوگ اور وکلا، صحافی،
صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ 3 مقدمات اس عدالت عظمیٰ کے اندر ایک نظیر بن جائیں، تاکہ پھر کسی ظالم ٹولے کو جرائم کرنے کی غلطی نہ ہو، اور جب وہ جرائم کریں ملک کے آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، تو پھر یہ عدالت عظمیٰ بڑے سے بڑے شخص کو ہتھکڑی لگانے کا حکم صادر کرے۔ یہی ہماری استدعا ہے اور یہی ہم عدالت عظمیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ریاست پاکستان پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے اور سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن جس میں فیڈریشن کی آواز بلند ہوتی ہے، اس میں آج تحریک انصاف کے اراکین سینٹ ایک مرتبہ پھر ان قومی امور کو لے کر اس عدالت عظمیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اور میں آج پھر دہراؤں گا کہ یہ جو 3 امور ہیں، یہ جو 3 کیسز ہیں، یہ 3 شخصیات کے کیسز نہیں ہیں، دے آر میٹر آف پبلک امپورٹنس، یہ نیشنل ایشوز ہیں۔ ایک عالم سواتی صاحب سینٹ کے ممبر، سینئر سٹیزن، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ذہنی اور جسمانی تشدد ہوا، اس کے خلاف وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کے ساتھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا، شہید ارشد شریف، ان کا لہو آج انصاف کے لیے پکار رہا ہے۔ اور تیسرا، پاکستان کے قومی لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان پر جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی جو پلاننگ ہوئی، اس کی جو ایگزیکیوشن ہوئی، ان کی جو FIR درج نہیں ہو رہی، اس پر پوری قوم آپ سراپا احتجاج ہے اور ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ یہ قانون کا دوہرا معیار کیوں ہے۔ ایک طرف جب عمران خان ایک افسر کے خلاف قانونی کارروائی کی بات کرتے ہیں تو آنن فانن ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وہی عمران خان جب گولیوں سے چھلنی ہوتے ہیں، ان کا بنیادی حق کہ وہ اپنی مدعیت میں اپنی مرضی کے ملزمان کے خلاف FIR درج کرا سکیں، وہ درج نہیں ہوتی ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ ایک طرف ڈیفالٹ کا خطرہ جو مارچ میں 5% تھا، مارچ سے آج ہم نومبر میں وہ 80% پر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ حال کر دیا ہے 93% کے اوپر، ہر بدلتے دن سے یہ ایک دن اوپر چلا جاتا ہے۔ 93%۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس ملک کو کہاں پر ہم نے لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ اور دوسری طرف قانون کا معیار آپ دیکھیں کہ 1100 ارب کی چوری ایک سٹروک آف پین سے معاف ہو جاتی ہے، کیسز عدالتوں سے واپس ہو جاتے ہیں، جیلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ثبوت۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس، یہ سر محل، یہ سوئس اکاؤنٹ، یہ آج کرپشن کے میناروں کی صورت میں کھڑے ہیں۔ یہ موجودہ دور کے اہرام مصر ہیں جن میں قوموں سے لوٹی ہوئی دولت آج مدفون ہے، پھر بھی آنکھوں پر پٹی ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ عمران خان کا
इस कौम पर एक बड़ा एहसान था कि उन्होंने कैंसर अस्पताल बनाया था कैंसर की इलाज के लिए, मगर उनका उससे भी बड़ा एक एहसान है कि उन्होंने एज ए स्टेट्समैन उस बीमारी की तशखीस की थी जिसका इलाज के बगैर ये मुल्क बल्कि कोई मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता, और वो बीमारी थी और है करप्शन की बीमारी की तशखीस की थी। उस वक्त भी उनको मशवरे दिए गए कि आप करप्शन वालों पर हाथ डालेंगे तो मईशत नहीं चल सकेगी। आज सवाल होता है कि अब बताएं कि करप्शन पर हाथ डालने से मईशत नहीं चल सकती कि करप्शन वालों को घर पहुंचाने के बाद मईशत चलेगी? ये वो बड़े बड़े सवाल हैं। ये वक्त नहीं है डिटेल में जाने का, मगर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि 26 नवंबर इन सवालों के जवाब के लिए है। 26 नवंबर इस कौम की तारीख को बदलने के लिए है। इसके बावजूद कि नहायत मायूस कुन हालात हैं इस मुल्क के, मगर अल्लाह ताला का खसूसी इनाम है इस मुल्क के ऊपर कि उसके बावजूद एक कौमी शख्सियत, एक कौमी लीडर आज इस कौम को मैसर है, और अगर लीडर मैसर हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो अपनी कौम की नैया को पार पहुंचाता है। आज पूरी कौम इन भरे मैदानों में, इन सड़कों पर, हर जगह पर अपने इस लीडर के साथ है, और वक्त है कि इंसाफ हो, वक्त है कि इन हालात की नज़ाकत को समझा जाए, वक्त है कि आवाम की आवाज़ को समझा जाए, उसे नकारा खुदा समझा जाए और इलेक्शन की तरफ बढ़ें, क्योंकि अब वक्त नहीं है। अदालतें अपना काम करें, पार्लियामान के हालात आपके सामने हैं। पार्लियामान एक ऑक्शन हाउस बन चुका है, और जब ऑक्शन हाउस होते हैं तो वहाँ पर इसी तरह की कानून साजी होती है जैसे हम देख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोम जल रहा है और नीरू बंसरी बजा रहा है। पाकिस्तान एक बहरानी कैफियत से गुजर रहा है और क्राइम मिनिस्टर 2 रोज़ा सैर के दौरे के ऊपर बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए हैं। आपने कभी कोई इतने मुख्तसर वक्त में बैरूनी दुनिया पे जाते हुए किसी को नहीं देखा होगा। मुल्क डूब रहा है, आपके सामने बता दिया गया है कि 90-95% डिफ़ॉल्ट के इम्कानात पैदा हो गए हैं, और इन लोगों की, हमारे तहरीक इंसाफ की जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो 5% था, अब 95% है, और ये सैर सपाटे के ऊपर निकले हुए हैं। मैं सिर्फ सवाल उठाना चाहता हूँ, हम यहाँ पर यानी 2-3 हफ्तों से रोज़ाना आ रहे हैं और सवाल उठा के चले जाते हैं कि जो इंसान का बुनियादी हक है। आज मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि अहमद नूरानी की जो स्टोरी है और यहाँ पर जो हमारे सामने आ गया है, इसके बाद भी कोई कसर बाकी रह गई है? उस स्टोरी को मिफ्ता इस्माइल के उस इंटरव्यू से और उस फिक्रे से जोड़ लें कि ये जो नैब के कानून में तरामीम हैं ये क्यों की गई हैं। दूसरी बात, आज ये सवाल है फिर कि एक मुजरिम पाकिस्तान का मफरूर कि जो 4 हफ्ते की छुट्टी अदालत से लेकर गया था और तीसरा साल उसे हो रहा है, वो अब दूसरी दफ़ा लंदन से भी मफरूर हो गया है। उसने डबल फरारी का उसने एजाज़ हासिल कर लिया है, और तस्नीम हैदर की बात का कोई जवाब देने वाला नहीं है, और वो फरार होके और बच्चों को भी साथ ले गया है। और वो मशहूर है हमारे यहाँ माकूला के बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, वो बच्चों को भी ले रहा है। और अब आप इस मुल्क के अंदर इंतज़ार कीजिए कि यहाँ पर हर तरह की जुल्म, ज़्यादती, करप्शन, बदमाशी करने के बावजूद वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रुसवाई का सबब हैं और तमाशा लगा के बैठे हुए हैं। आखिरी सवाल उठाता हूँ, तहरीक इंसाफ 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान जिसमें शरीक होगा, रावलपिंडी आ रहे हैं। अरब रुपया ये कातिल, स्मगलर,
वजीर दाखिला अरब हा रुपया इसने पिछले 1 महीने के अंदर इस्लामाबाद के ऊपर खर्च कर दिया है। ये इसके बाप का पैसा था। क्यों खर्च किया? क्यों 1300-1500 कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर लगाए? क्यों शहरियों को तकलीफ दी? क्यों फंक्शनरी को काम नहीं करने दिया गया? क्यों धमकियां देता रहा, बकवास करता रहा और कोई एक लफ्ज भी इंसानों वाला उसकी जुबान से आज तक हमने नहीं सुना। आज हम सवाल करते हैं कि ये अरबों रुपया कहाँ, क्या ये इसके पेट से निकाला जाएगा? और इंशाल्लाह तब्दीली आ रही है और आएगी तो इंशाल्लाह ताला एक एक से एक एक पाई का हिसाब लेंगे, किसी को माफ नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अक़दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तुमसे पहले वो कौमें बर्बाद की गई, तबाह की गई, जहाँ ताकतवर के लिए अलग कानून था और कमज़ोर के लिए अलग कानून था। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, सब के लिए बराबर। और ये डिमांड हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे है और इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, तभी मुआशरे आगे जाएंगे। इमरान खान साहब वो लीडर हैं, जब फायरिंग हुई हम कंटेनर पे मौजूद थे और 1 से ज़्यादा जगह से फायरिंग हुई और इमरान खान साहब को गोलियां लगीं, वो नीचे पड़े थे और उस वक्त भी हम भी नीचे थे कंटेनर के ऊपर, सब लेट गए, इर्द गिर्द लोग थे और इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब को उस वक्त अपनी फ़िक्र नहीं थी, इमरान खान साहब को इस कौम की फ़िक्र थी और अपने साथियों की फ़िक्र थी। इमरान खान साहब वो लीडर हैं जिन्होंने आज तक इस कौम को मायूस नहीं किया और ये कौम भी खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि इसने भी कभी अपने लीडर इमरान खान को मायूस नहीं किया। तो जिस मुल्क के पास ऐसी कौम हो और जिस मुल्क के पास इमरान खान जैसा लीडर हो, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। 26 नवंबर को इंशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है, पुरअमन एहतजाज, जो कि हमारा हक है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कॉल तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं है, ये अवाम की कॉल है जिसे तहरीक इंसाफ ने ज्वाइन किया है। पूरे पाकिस्तान से काफिले रावलपिंडी पहुंच रहे हैं और हमारी डिमांड बिल्कुल सिंपल है। हम चाहते हैं कि मुल्क में फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट की जाए, ये इम्पोर्टेड असेंबली को तोड़ा जाए, गिराया जाए, ख़त्म किया जाए और नए इंतखाबात हों ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। आज इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हर गुजरता घंटा जो अवाम के लिए भारी साबित हो रहा है, तो इसलिए इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं। और इमरान खान साहब के जो 3 मुतालबात हैं जिसके लिए हमारे सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस लगातार इंसाफ के लिए पुकार रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी डिमांड है कि इमरान खान साहब के वो 3 मुतालबात पूरे हों। इमरान खान को इंसाफ मिले, FIR दर्ज हो, आज़म स्वाति साहब को इंसाफ मिले और शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, और ये पूरी कौम की डिमांड है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों ने सारी बात की तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि ये इमरान खान का कसूर क्या था। अगर एक मुर्दा पड़ा होता है, उससे आप जो उठाकर ले जाओ वो आपको कुछ नहीं कहता, उसको नहीं पता चलता क्या करे। उसी तरीके से अगर एक कौम मुर्दा हालत में पड़ी हो, उससे जो मर्जी उठा के ले जाओ वो कुछ भी नहीं कहेगी। इमरान खान का कसूर ये है, उसने उस मुर्दा कौम को जगा दिया है, उसके अंदर उसने एक किस्म की जान डाल दी है। तो अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं बताओ ये पे हम किस कौन लेकर गया है, मेरी चादर कौन लेकर गया है, मेरे बटुआ कौन लेकर गया है। और ये कसूर है इमरान खान का। और ये याद रखिए, हमारे पास वो प्राइम मिनिस्टर था कि जब प्राइम मिनिस्टर था तो बाहर एक और
छोटी सी कंपनी का मुलाजिम था। आप सोच सकते हो कि आपका प्राइम मिनिस्टर एक छोटी सी कंपनी का मुलाजिम था। अरे शर्म आनी चाहिए उस कौम को कि जिसका प्राइम मिनिस्टर एक छोटी सी कंपनी का मुलाजिम था। कहते हैं मुझे तनख्वाह नहीं मिली, मेरे पैसे नहीं लिए। अरे शर्म करो, तुम उसके मुलाजिम थे और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त थे। ये याद रखो, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें आज दूसरा हफ्ता है, हम सुप्रीम कोर्ट के आगे इंसाफ के लिए आ रहे हैं और मैं कुरान शरीफ की सूरा आले इमरान की एक आयत आपसे पढ़ती हूँ, 54वीं आयत, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम खुफिया प्लान्स करते हो, अल्लाह ताला तुमसे बेहतर खुफिया प्लान्स करता है और वो सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला है। इन्होंने ये 3 टेस्ट केस बनाए, इन्होंने शहीद अरशद शरीफ के साथ जो किया, इन्होंने आजम सवाती साहब को जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया, इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। ये तीनों लोग, हम इनको सलाम करते हैं, तारीख में लिखा जाएगा। अदलिया के कौन से बड़े लोग हैं जो हमें याद हैं? अदलिया के जस्टिस भगवान दास हमें याद हैं, अदलिया के हमें दुराब पटेल साहब याद हैं, अदलिया के हमें आर्दशेर कवास जी याद हैं। आपका नाम कहाँ आएगा? आप बताइए। तारीख बहुत ज्यादा बेईमाना तरीके से सबके नाम बराबर कर देती है। अगर आज आप हमें इंसाफ नहीं दे रहे तो आप याद रखें, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह ताला सबर वालों के साथ होता है। और हम यहाँ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हर दिन, हर लम्हा, हर घंटा जो गुजरता है आपके ऊपर एक कलंक है, आपके ऊपर एक निशान है। क्या उन 3 लोगों के नाम क्यों नहीं आ सकते FIR में? सबसे पहला नाम आना चाहिए अस्करी इदारे के मुलाजिम का, 20वें ग्रेड के मुलाजिम का। क्यों नहीं लेते जनरल फैसल का नाम? क्यों नहीं लेते? हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनके इदारे चलते हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम दूध तेल पे टैक्स देते हैं, उनसे इनकी तनख्वाहें जाती हैं। ये कैसे इनका नाम नहीं हम ले सकते? कैसे? वजीर आजम का तो नाम हम ले सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर का नाम भी ले सकते हैं, इनका नाम क्यों नहीं ले सकते? तो चीफ जस्टिस साहब उमर अता बिन दयाल साहब इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हम सारे पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, अफसरों की भी इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी इज्जत करवाएं, आप हमारे दिलों में अपनी जगह बनाएं। अवाम भूलेगी नहीं, अवाम के नुमाइंदों की जिस तरह से यहाँ पर जलीलो ख्वार किया जा रहा है, हम खड़े रहेंगे। ये अलमिया है आपका, हम नहीं छोड़ेंगे, हम खड़े रहेंगे और हमें इंसाफ हमारा रब देगा। कोई इंसान नहीं है हमें इंसाफ देने वाला, हमारा रब देगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।